जन्म कर्म दिव्य है. So today we are going to discuss about different incarnation of Krishna. जन्म कर्म दिव्य है. So today we are going to discuss about different incarnation of Krishna in details and Krishna's potency, कृष्ण की शक्ति. तो अक्षयपु एक श्लोक निकालिए. एते चांशो कला पुंशो कृष्णस्तु भगवान स्वयं. तो so Krishna speaks that if you know my activity and my birth, my incarnation, then Tyakta deham punarjanma noiti mameti saharjuna. Krishna says that you don't have to take birth again. So in many places, Krishna says that if you practice devotional service, if you do this, you don't have to take birth again. If you do that, you don't have to take birth again. You'll go back to the spiritual world in Krishna's eternal, loving, wonderful, sweet pastime. So by bhakti yoga, by chanting every day your rounds, you can get the ticket going back to the spiritual world. So material world is full of miseries and rebirth or next birth, next life is confirmed. Nobody can avoid. Everybody has to take birth again. Now it may be cat, it may be rat, it may be tree, or it may be worm in the stool, or it may be in the spiritual world. So now it is our choice how we live our life, how we lead our life, how we perform our activity. So therefore, human form of life is a choice. Human life is a choice. How we lead our life, what we are trying to achieve in our life, what destination. Nate vidhu sartha gatim hi Vishnu. तो जीवन के जो स्वार्थ हैं वो भगवान या विष्णु या कृष्ण, ये हमें समझना चाहिए. अगर हम लोग ये समझते हैं तो हम लोग सही डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे. और जो दुराशया जे बहिरर्थ मानिना, जो दुराशया, जो ऐसे इच्छा करते हैं जो कभी भी फुलफिल नहीं होने वाला है. दुराशया मतलब जो आशा कभी फुलफिल नहीं होगा. दुराशया जे बहिरर्थ मानिना, लेकिन जो इस इंद्रिय भोग के पीछे भटकते हैं वो उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होता है. तो इसलिए हमें भगवान की आश्रय लेना चाहिए और हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए. So today we have very important and interesting and very powerful topic. So Krishna says that if you know about me, about my pastime, you don't have to take birth again. Bhagavad Gita 4.9. So जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति. शरीर त्याग करने के बाद आपको दोबारा जन्म नहीं होगा. So Krishna promises, if you know about Krishna's pastime, Krishna's incarnation, you don't have to take birth again. So in this connection, आप सबको समझ में आ रहा है ना इंग्लिश, राहुल? Okay. Yes, So in this connection, we have our topic Krishna and his incarnation and his sweet pastime. So we'll start with the verse mentioned in Srimad Bhagavatam
spoken by Srila Sukadev Goswami. So you can pin Akshay Prabhu and you can see the verse 1.3.28. 1.3.28. So I request everybody to recite after me. Ete chamsho kala pumsha. Ete chamsho kala pumsha. Ete chamsho kala pumsa. Ete chamsho kala pumsha. Krishnastu Bhagavan Sayam. Krishna tu Bhagavan Swayam. Krishnastu Bhagavan Sayam. Krishna tu Bhagavan Swayam. Indrari Bekulam Lokam. Indradi Vakulam Indravadgokam Indrari Bekulam Lokam. Indradi Vaikulam Lokam. Miryanti Yuge Yuge. Okay, go for the translation. Somebody read the translation loudly. Yes, somebody from the online. All the above mentioned incarnation are either a plenary portion or portion of the plenary portion of the Lord. But Lord Sri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on planet wherever there is a disturbance created by the atheist. The Lord incarnated to protect the atheist. Okay. All the above incarnation, इसका मतलब है इसके पहले incarnation के बारे में बता दिया गया है. समझ में आ रहा है? All the above incarnation are either plenary portion or the portion of the plenary portion. एते चामशो कला पुंशो. अंश और कला. अंश मतलब is plenary portion. And kala means portion of the plenary portion. और इसको कहते हैं expansion. Expansion को बोलते हैं अंश और expansion of the expansion. Expansion of the expansion उनके अंश के अंश को कहते हैं कला. तो एते चामशो कला पुंशो. So all above mentioned incarnation मतलब इसके पहले मेंशन किया गया है. तो इसके पहले इनकारनेशन का लिस्ट भगवान देते हैं. सॉरी, सुखदेव गोस्वामी भागवतम में देते हैं. तो इतने सारे देने के बाद कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं. सो ऑल द अबव इनकारनेशन आर द either plenary portion or the portion of the plenary portion of the Lord. But Krishnastu Bhagavan Swayam, Lord Krishna is the original personality of Godhead. Hari Bol. So Krishnastu Bhagavan Swayam, so Swayam Bhagavan. That means Krishna is the origin of all the mentioned incarnation. All the mentioned incarnation are originated from Lord Krishna, and therefore Krishna is Adi. Krishna is the beginning. That's what Srimad Bhagavatam, first verse of Bhagavatam says, Janmadiyasya itarathaschaर्थेषु अभिज्ञो स्वराट. जन्मादिजस्य, जो सब कुछ के आदि है. और इसलिए ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमं पुमां जो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. तो ब्रह्मा जी in each and every verse he is saying Govindam Adi Purusham. Now Brahma is the first person of this universe. He is the head of the universe, and therefore who knows better than बोलिए
Who knows better than ब्रह्मा? इतना नहीं बोल पा रहे। ब्रह्मा से अच्छा किसको पता होगा? क्योंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के हेड है और ब्रह्मा भगवान के पहला पुत्र है और इसलिए ब्रह्मा का नाम है स्वयंभू। ब्रह्मा का और एक नाम है स्वयंभू क्योंकि वो स्वयं भगवान से डायरेक्ट जन्म होता है। इस दुनिया में किसी को जन्म लेने के लिए माता पिता का जरूरत होता है। तो माता पिता जब मिलित होते हैं तब पुत्र का जन्म होता है, लेकिन ब्रह्मा को जन्म लेने के लिए किसी माता का जरूरत नहीं है। स्वयं भगवान से जन्म हुआ है ब्रह्मा का। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है। जैसे बच्चे का कनेक्शन क्या होता है? माँ के नाभि से होता है ना, एब्डोमिनल कॉर्ड, जिसमें बच्चा माँ से जुड़ा हुआ रहता है। तो भगवान का एब्डोमिनल कॉर्ड क्या है? वो कमल है। तो भगवान ब्रह्मा के लिए माँ भी है, भगवान ब्रह्मा के लिए पिता भी है। तो भगवान को बच्चा पैदा करने के लिए लक्ष्मी देवी से सम करने की जरूरत नहीं होता है। तो भगवान इच्छा करते हैं तो सब कुछ सृष्टि हो जाता है। तो ब्रह्मा भगवान के लिए भगवान ब्रह्मा का पिता भी है और माता भी है, इसलिए ब्रह्मा को स्वयंभू कहते हैं। तो ब्रह्मा भगवान की पहला पुत्र है और इस सृष्टि के पहली जीव है, तो इसलिए ब्रह्मा से ऑथेंटिक अथॉरिटी और कौन हो सकता है? तो ब्रह्मा, उनके ब्रह्म संहिता जो सबसे ऑथेंटिक स्क्रिप्चर है, तो उसमें हर श्लोक में कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सो गोविंदा, श्री कृष्णा, ही इज द origin of all incarnation. So all of them appear on the planet whenever there is a disturbance created by the atheist. The Lord incarnates to protect the theist. तो भगवान प्रकट होते किस लिए? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। कोई चीज इधर कहा गया, धर्म संस्थापनार्थाय, साधुओं को परित्राण करने के लिए और असुरों को विनाश करने के लिए। तो वही चीज इधर भी बोला गया है कि इंद्रारी व्याकुलम लोके मेरियंती युगे युगे। तो भगवान युग युग में मेरियंती मतलब आते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और किससे प्रोटेक्शन देते हैं? इंद्रारी, इंद्र और उसके औरी मतलब शत्रु, जिसे अरिंदम कहते हैं। तो शत्रु, इंद्र के जो शत्रु है, देवताओं के जो शत्रु है असुर लोग, उनको विनाश करने के लिए इस पृथ्वी में प्रकट होते हैं। अलग अलग अवतार के साथ प्रकट होते हैं, अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं। तो ये एक थीम है आज के टॉपिक का, एक फाउंडेशनल टॉपिक है कि कृष्णा एंड हिज इनकारनेशन। तो भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं और वो सारे अवतार की स्रोत हैं। और भगवान आते हैं, उनके पीछे कारण क्या है? ना साधुओं को परित्राण करने के लिए और असुरों को विनाश करने के लिए और धर्म संस्थापन करने के लिए, धर्मों की स्थापना करने के लिए और उनके भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, टू गिव प्लेजर टू हिज डिवोटी। सो दिस इज द रीजन लॉर्ड अपीयर। सो नाउ वी go for the slides. तो generally we know that incarnation means 10 incarnation. Come for the 10 incarnation slide. So generally हम लोग जानते हैं कि 10 अवतार का मतलब है 10 अवतार। तो जैसे मत्स्य, कूर्म, फिर नीचे चलिए बराह, देन नीचे चलिए नरसिंह, देन वामन, देन परशुराम,
then Ram, then Balaram, then Buddha, then Kalki. ऊपर जाइए, कल्कि एंड कृष्णा. तो ये 10 इनकारनेशन का लिस्ट भागवतम में भी दिया गया है. लेकिन ये जो 10 अवतार है, ये अवतार केवल 10 नहीं है. शास्त्र में भागवतम में कहा गया है अवतार ही असंख्यो, अवतार असंख्य है. तो उसमें से किसी किसी जगह में बताया गया है 10 इनकारनेशन एंड मुख्य है, और किसी किसी जगह में बताया गया है 24 इनकारनेशन मुख्य है. बट there is actually unlimited incarnation, just like there is unlimited waves in the ocean. समुद्र में अनलिमिटेड वेव्स रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता ही रहता है, आता ही रहता है. उसी प्रकार भगवान के अलग अलग अवतार अलग अलग युगों में अलग अलग समय पे आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं. तो धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए, असुरों को विनाश करने के लिए भगवान अलग अलग अवतार लेके उनके शरणागत भक्तों को प्रोटेक्शन देने के लिए आते ही रहते हैं. तो इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत, क्योंकि वो उनके भक्तों को रक्षा करने में कभी विच्युत नहीं होते हैं, कभी फेल नहीं करते उनके भक्तों को रक्षा करने के लिए, धर्मों को स्थापन करने के लिए या धर्मों को रक्षा करने के लिए कभी भगवान विच्युत नहीं होते हैं. तो इसलिए भगवान धर्म रक्षक है, जो धर्म को रक्षा करते हैं. तो भगवान का एक नाम है विश्वम्भर, जो इस विश्व के भार को हरण करते हैं, इस विश्व के पाप को हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम है विश्वम्भर. विश्वम्भर द्विजबरो जुग धर्म पालको वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो. चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया गया है. किस प्रकार चैतन्य महापुरुष युग धर्म स्थापन करने के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उन्होंने इस पृथ्वी के भूभार को हरण किया है. कुंती महारानी कह रहे हैं कृष्ण को, भारावतार नायन्ने भुवना वैबोदधो सिदंता भूरि भारेना जातो ही आत्म भुवार्थितो. तो कुंती महारानी कृष्ण की बुआ थी, लेकिन कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप जन्म लेते हैं भारावतार ना अन्य भूवो नाभो इबोदधो. इस पृथ्वी रूपी सागर में, इस भव सागर में आप आते हैं इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए. तो भारावतार नायन्ने भूवो नाभो इबोदधो सिद्ध्यंत भूरि भारेना. इस पृथ्वी जब डूब जाता है पाप से, इस भव सागर के पाप में डूब जाता है, तो उस पृथ्वी के पाप को हरण करने के लिए आप आते हैं. तो कुंती महारानी उनके प्रार्थना में बहुत सारा श्लोक बताती है जो कृष्ण के आविर्भाव के बारे में वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण किस लिए आते हैं. तो उसमें और एक सुंदर श्लोक है. तो उसमें कुंती महारानी कह रही है, कृष्ण आप आपके भक्तों के लिए आते हैं. तो उधर कुंती महारानी कह रहे हैं कि भक्ति जोगो विधानार्थम कथम पश्येत मोहि स्त्रिय. तो कुंती महारानी कह रहे हैं कि हे कृष्णा, हे प्रभु, हे भगवान, आप आते हैं भक्ति जोग विधानार्थम, भक्ति जोग प्रदान करने के लिए. अथो विश्वेश विश्वात्मान विश्वमूर्ति सकेशु में स्नेह पाशमिमं छिन्नि विरम पांडुषु वृष्णिषु. आप वृष्णि कुल में प्रकट होते हैं, आप विश्व के आत्मा हैं. अथो विश्वेश विश्वात्मन, आप विश्व मूर्ति, आप विश्व के मूर्ति स्वरूप हैं. तो आप आते हैं इस
विष्णु वंश में जन्म लेते हैं इस पृथ्वी की भूभार को हरण करने के लिए। जैसे चंदन मलय पर्वत में जन्म होता है, लेकिन मलय पर्वत की जो महानता चंदन के लिए प्रसिद्ध होता है, उसी प्रकार आप वृष्णि कुल में जन्म लेते हैं, क्योंकि वृष्णि लोग आपके भक्त हैं। तो वृष्णि कुल में जन्म लेते हैं या यदु वंश में जन्म लेते हैं, और यदु वंश के प्रसिद्धि आपके लिए है, क्योंकि आप चंदन के जैसे, मलय सेव चंदनम। और उसी प्रकार कुंती महारानी कह रही है कि आप आपके भक्तों को आनंद विधान करने के लिए आते हैं। भक्ति जोगो विधानार्थम, जो आप निर्मल हृदय के भक्त हैं, मुनि नाम अमलात्मनः भक्ति जोगो विधानार्थम कथम पश्चित मयि स्त्रियम। तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूं, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ? आप तो आपके अमल निर्मल हृदय भक्तों को भक्ति देने के लिए आते हैं। इस प्रकार कुंती महारानी उनके प्रार्थना में कह रही है। तो भगवान कृष्ण की असंख्य अवतार है, जैसे समुद्र में असंख्य लहरें हैं। अभी उसमें से कुछ ही अवतार के बारे में लिखा गया है। अगर सब लिखा जाएगा तो क्या होगा? किताब इतना बड़ा हो जाएगा कि एक रूम में आप उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। अभी कलयुग के लोगों के ब्रेन इतने छोटा है, उनको पढ़ना लिखना अच्छा ही नहीं लगता है। तो इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है, और भागवतम वेद पुराण उसके बाद इतना सारा लिखेंगे तो लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कुछ मुख्य अवतार के बारे में वर्णन किया गया है मेनली, और बाकी अवतार के बारे में छोटा छोटा करके, जैसे मोहिनी मूर्ति भगवान के अवतार है, चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार है, जो इस लिस्ट में नहीं है। तो लेकिन शास्त्रों में और पुराणों में अलग अलग जगह में भगवान के अलग अलग अवतार के बारे में वर्णन किया गया है। तो पहला चीज समझना ये जरूरी है कि कृष्णा इज द इनकारनेशन ऑफ ऑल इनकारनेशन। तो इसलिए इधर कहा गया एते चांशो कोला पुंशो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है। तो कृष्ण सारे अवतार के अवतारी है, स्रोत है। इसलिए प्रभुपाद जी की किताब जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा जाता है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ क्या लिखा जाता है? पीछे किनको ढूंढ रहे हैं? पीछे कोई नहीं है। तो कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ क्या लिखा गया है? गॉड हेड। गॉड हेड क्यों लिखा गया है? अरे गॉड तो हेड ही है, फिर गॉड हेड क्यों लिखा गया है? कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। गॉड तो हेड ही होता है सबका, लेकिन फिर गॉड हेड क्यों लिखा गया है? कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, क्योंकि जितने भी बाकी गॉड है, जितने भी इनकारनेशन है, उसका भी हेड है कृष्णा। तो अभी उसके अगेंस्ट में कुछ क्वेश्चन होगा, तो हम लोग क्वेश्चन लेंगे बाद में। कुछ क्वेश्चन होगा आपको, तो आई विल टेक एट द एंड के फिर हम लोग देखते हैं अलग अलग। कृष्ण तो बाद में आए हैं, ये भगवान पहले आए, वो भगवान पहले आए हैं। तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आप क्वेश्चन आंसर में चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग डायरेक्ट स्लाइड में जाएंगे। कृष्ण के इनकारनेशन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा स्लाइड में चलते हैं। स्लाइड में हम लोग थोड़ा स्लाइड चेंज करिए, चेंज द स्लाइड। ओके। तो सब लोग अच्छे तरीके से सुनिएगा, क्योंकि क्लास थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव क्लास है। टेक्निकल बहुत सारा पॉइंट है, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट समझना भी जरूरत है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है समझना। तो इसलिए आप लोग टेक्निकल चीज को अच्छे से समझिएगा। शायद आपको मुखस्त नहीं कर पाएंगे, मुखस्त करना जरूरी नहीं है, लेकिन समझना जरूरत है। तो आप सब लोग प्रेजेंट हैं?
गोपाल, दीक्षा, देवज्योति, विकास, अनीश, मिंटू हलदर, प्रीतम प्रधान, रूपम, यस प्रभु। संदीपान, संग्राम, शुभम। Yes, sir, Subham. Okay, so please pin the slide. Okay, तो अभी भगवान के जितने भी अवतार हैं या भगवान के जितने भी भगवान के अवतार हैं या भगवान खुद है, वो आध्यात्मिक जगत में हमेशा के लिए है। दे आर इटर्नली प्रेजेंट और देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई टाइम का इन्फ्लुएंस नहीं है। टाइम का इन्फ्लुएंस कहाँ पे है, कहाँ पे? थोड़ा रेस्पॉन्स करिएगा तो अच्छा लगेगा हमें भी बोलने में क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, तो आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और दुर्भाग्य से हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, फेस टू फेस नहीं है। अब फेस टू फेस क्लास का मजा ही अलग है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं, आप रियलाइज कर सकते हैं, और जो स्पीकर है वो भी अपने हृदय से बोल सकता है, और वो भी समझ सकता है कि कितना लोगों को समझ में कितना आया, कहाँ पे डाउट है। तो यस, तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्या था? टाइम का इन्फ्लुएंस कहाँ है, मतलब कौन? हाँ, टाइम का इन्फ्लुएंस कहाँ पे है? मटेरियल वर्ल्ड में। Yes, material world there is a past, present and future. There is every moment, like I spoke something, it become past. And we can think about the future. So past is very fraction of time. present जो होता है बहुत ही, अभी जो बोला वही मतलब क्या बोलते, पास्ट हो गया। So present is very fraction moment of time in the material world, and mostly everything is influenced under the influence of future. People lament about their past, and people are fearful about their future. So present is very little moment of time, and therefore people are always in anxiety. People are always in anxiety about past and future. But the spiritual world, everything is present. Everything is present because there is no influence of time. There is no past and there is no future, because everything is an eternal platform. शाश्वत स्तर पे है, सब कुछ शाश्वत है, इटर्नल है। भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पोररी है, अनित्य है। जैसे हमारा शरीर टेम्पोररी है, अभी जन्म हुआ, अभी हमारा कुछ साल पहले मैं छोटा था, अभी मैं जवान हो गया, अभी मेरा उम्र 38 है। अभी धीरे धीरे बुढ़ापा की तरफ आगे जा रहा है, फिर मृत्यु हो जाएगा। तो जन्म हुआ, सृष्टि हुआ और फिर ध्वंस हो जाता है। तो शरीर का विनाश होता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। और उसी प्रकार आत्मा के साथ भगवान की संबंध जो है शाश्वत है। भगवान शाश्वत है, भगवान के धाम भी शाश्वत है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। भौतिक जगत का सृष्टि होता है और विनाश होता है। भूता प्रलीयते। तो भगवान के धाम में भगवान शाश्वत रूप में अपने शाश्वत भक्तों के साथ लीला विलास करते हैं। तो अभी भौतिक जगत में जब भगवान आते हैं तो वो कोई अवतार पहले आते हैं, कोई अवतार बाद में आते हैं। अभी हमारे हिसाब से लगता है कि ये आगे आया है, ये बाद में आया है। जो आगे आया है वो पुराना है, और जो बाद में आया है नया है। जो आगे आया है उसका जन्म आगे हुआ है, जो बाद में आया है उसका जन्म बाद में हुआ है। लेकिन एक्चुअली वो हमारे हिसाब से हमें लगता है कि आज का सूर्य जो है नया सूर्य है, और काल का सूर्य मतलब काल जो सूरज आएगा वो और नया होगा, और पिछले दिन का सूर्य पुराना सूर्य है। लेकिन असल में तो सूर्य हमेशा के लिए है आसमान में। ये सुनो, आपको समझ में आ रहा है? तो सूर्य आसमान में हमेशा के लिए है। अभी आज का सूर्य को जो संडे का सूर्य है, और काल का सूर्य होगा मंडे का सूर्य है, लेकिन सूर्य तो एक ही है।
हमेशा के लिए है। उसी प्रकार हमारे हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन भगवान के एक्चुअल रियलिटी है, एक्चुअल रियलिटी भगवान हमेशा के लिए आध्यात्मिक जगत में है। और भगवान के जो अलग अलग अवतार है उनके धाम में भी हमेशा के लिए है। भगवान शाश्वत है, भगवान नित्य है, नित्य नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एक बहुनाम जो विदधाति कामान। तो नित्य नित्यानाम भगवान परम नित्य है, और भगवान से नित्यानाम मतलब प्लूरल नंबर है। हाँ, नित्य नित्य ना मतलब इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी, उसका जन्म हुआ है। नित्य नित्य नाम चेतनोस चेतनानाम, और भगवान परम चेतन है, और उस परम चेतन भगवान से बहुत सारे अनुचेतन का जन्म हुआ है, उसको कहते हैं आत्मा। हाँ, तो उसमें फर्क क्या है, भगवान और जीव में फर्क क्या है ना। भगवान एको बहुनाम जो विदधाति कामान, वो एक परम चेतन परम शाश्वत भगवान जो आदि पुरुष हैं, विदधाति कामान सबके जरूरत को पूरी करते हैं। He is fulfilling the necessities of every living entities. तो एक बहुनाम जो विदधाति कामान, तो वो जीव और भगवान में फर्क है। तो जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है। जीव हमेशा भगवान के अंश है। तो गीता में भगवान कहते हैं कि मामोई वांशो जीवो लोके जीवो भूता सनातना। तो भगवान भी सनातन है, जीव भी सनातन है, लेकिन भगवान पूर्ण है और जीव उनके अंश है। मामोई वांशो जीवो लोके, आत्मा जीवात्मा मेरा अंश है, सनातन अंश है। लेकिन भगवान को भूल जाने के कारण जीवात्मा इस भौतिक जगत में आता है, और भौतिक जगत में वो क्या करते हैं, इस समय जन्म मृत्यु के चक्र कर्म के बंधन में वो भटकते रहते हैं। तो मामोई वांशो जीवो लोके जीवो भूता सनातना मनोषष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस प्रकृति इस भौतिक जगत में वो लोग क्या करते हैं, कर्षति संघर्ष करते हैं। तो अभी जो मैं कह रहा था कि भगवान के अवतार आध्यात्मिक जगत में शाश्वत रूप से है। अभी इस दुनिया में कोई जरूरत के हिसाब से, जैसे बोला गया ना, इंद्रारी व्याकुलम लोका मेरे अंति जुगे जुगे। तो अलग अलग युग में जरूरत के अनुसार आते हैं, लेकिन ये युग जो है साइकिल चेंज होता रहता है। जैसे सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, उसके बाद क्या, नया यूरेनस नेपच्यून प्लूटो। उसके बाद क्या होता है, फिर से सोम मंगल बुध बृहस्पति रिपीट होता है। उसी प्रकार सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग कलियुग, कलियुग के बाद फिर से सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग कलियुग। ये युग का कैलेंडर है। जैसे हमारा मंथ का कैलेंडर है, ईयर का कैलेंडर है, शास्त्र में युग का कैलेंडर है। तो इस प्रकार हमने डिस्कस किया किस प्रकार 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिन होता, 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 4 युग मिला के एक चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ऐसे 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का एक रात्रि होता है। तो टाइम कैलकुलेशंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लैनेट्स। इवन क्या नाम है उसका, Einstein also accept the relativity of time. So time calculations are different in different planets. So our calculation of time and the calculation of time in the Sargaloks are different. And similarly, the calculation of time in the heavenly planet, in Brahmalok is different. And the spiritual world, कौन बोलेगा? Spiritual world, no time, correct. हरि बोल. So जितना ऊपर के तरफ जाएंगे टाइम का इन्फ्लुएंस कम होगा। जितना ऊपर के तरफ जाएंगे, अभी ये मर्तलोक का 6 महीना स्वर्गलोक का 1 दिन है। मर्तलोक का 6 महीना स्वर्गलोक में 1 दिन है। तो स्वर्गलोक का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। जितना नीचे की तरफ जाएंगे, निम्न जोनी में जाएंगे, लाइफ स्पैन कम होता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ कम होता है, जन्म मृत्यु और इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। जितना ऊपर जाएंगे लाइफ स्पैन इज बिग, एंड द हाईएस्ट लाइफ स्पैन इन द मटेरियल वर्ल्ड इज ब्रह्मा।
ब्रह्मा का लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा होता है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई जन्म मृत्यु होता ही नहीं है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाइफ इटर्नल है, शाश्वत है। देखिए बहुत साइंटिफिक है, अगर थोड़ा सा बुद्धिमान होंगे तो समझ जाएंगे, साइंटिफिक है, लॉजिकल है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। तो जो मैं कह रहा था कि तो भगवान के अलग अलग अवतार, हाँ, युगों के अनुसार, समय के अनुसार आगे पीछे आते हैं। तो उसके अनुसार हम लोग बोल नहीं सकते कौन आगे है, कौन बाद में है, क्योंकि वो लोग सब शाश्वत है। लेकिन उनका आदि सोर्स एक जन है, आदि सोर्स, उनका ओरिजिनल, हाँ, उसका जो सोर्स है वो है कृष्णा। तो वो शास्त्र में, भागवत पुराण में, अलग अलग जगह में, वैदिक शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो 4 तत्व है, टोटल 4 तत्व है। तो आप लोग याद रखिएगा, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, शिव तत्व और जीव तत्व, 4 प्रकार के तत्व है। तो विष्णु तत्व मतलब कृष्ण और उनके सारे इनकारनेशन, उनको कहते विष्णु तत्व। विष्णु शब्द का अर्थ है ऑल परवेडिंग, और इसका और एक शब्द है जिसको कॉग्निजेंट कहते हैं। तो ऑल परवेडिंग मतलब हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह में उपस्थित है, उसको कहते हैं कॉग्निजेंट या ऑल परवेडिंग और विष्णु। सो कृष्णा इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, इन द टॉप प्लैनेट टू द लोएस्ट प्लैनेट, एवरीवेयर कृष्ण इज प्रेजेंट। तो विष्णु तत्व है जो भगवत तत्व है, जो भगवान, और फिर उसका शक्ति, भगवान शक्तिमान, और उसके शक्ति है शक्ति तत्व। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, भगवत तत्व या विष्णु तत्व और फिर शक्ति तत्व। तो भगवान के अलग अलग शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति राधा रानी, बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी, और एक शक्ति है जिसको कहते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति मतलब मार्जिनल पोटेंसी, वो है जीव तत्व। तो जीव जो हम लोग है, जो जीवात्मा, आत्मा, इसको कहते हैं जीव शक्ति। ये मार्जिनल पोटेंसी है, ये चाहे तो भगवान के बहिरंगा, भगवान के आश्रय में भी रह सकता है, और नहीं चाहे तो भगवान से बहिर्मुख भी हो सकता है। तो बहिर्मुख होंगे तो बहिरंगा शक्ति के अंडर में रहेंगे दुर्गा, और अंतर्मुखी होंगे या भगवान के अनुकूल रहेंगे तो भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी के आश्रय में रहेंगे। तो ये जीव शक्ति है जो जीवात्मा, और एक शिव शक्ति है जो जीव और भगवान के बीच में है। कौन बात कर रहे हैं? तो ये टेक्निकल टॉपिक है, आप लोग ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो बहुत सारा समझ में नहीं आएगा। तो और एक है शिव तत्व। शिव तत्व मतलब लॉर्ड शिवा, जो जीव तत्व भी नहीं है और विष्णु तत्व भी नहीं है, तो भगवान भी नहीं है और जीव भी नहीं है, उसको कहते हैं शिव तत्व। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं क्षीरम यथा दधि विशेष विकार जोगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु जसंभूताम अपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इधर जत शंभुताम अपि तथा, जो शंभु के बारे में बताते हैं, जो शंभु मतलब शिव। तो क्षीरम यथा दधि विशेष विकार जोगात। तो खीर जो होता है दूध, दूध अगर नींबू के टच में आता है तो क्या होता है? तो दूध फट जाता है। हाँ, तो दही बन जाता है, करेक्ट। उसी प्रकार भगवान कभी माया को स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान मायाधीश है। तो अभी इस भौतिक जगत को पालन करने के लिए, अभी भौतिक जगत में कौन है? माया है। भौतिक जगत में माया है, और जिधर सब लोग भगवान को भूल के हैं। तो इस भौतिक जगत को
पालन करने के लिए भगवान माया को स्पर्श करते हैं, और जब भगवान माया को स्पर्श करते हैं उनको बोलते हैं शंभु। जैसे दूध नींबू के संस्पर्श में खीर बनता है, उसी प्रकार भगवान इस माया को पालन करने के लिए माया को स्पर्श करते तो वो शंभु का रूप लेते हैं। तो जब शंभुताम अपि तथा समुपेति कार्यत, ये जो शंभु भगवान के प्रकाश है, तो ये स्वयं भगवान भी नहीं है और जीव शक्ति भी नहीं है, जीव तत्व भी नहीं है, तो इसके बीच में है। शंभु इसके बीच में है, लेकिन जीव भी नहीं है और भगवान भी नहीं है, भगवान के जैसे ही है। भगवान के जैसे ही है। तो इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट क्लास हम लोग आप लोग को पहले भी बताए हम लोग, तो उसको सेपरेटली कभी दूसरे एक टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। तो इस प्रकार 4 तत्व हैं। विष्णु तत्व जो भगवान विष्णु या कृष्ण के सारे अवतार, फिर शक्ति तत्व भगवान के सारे शक्ति, 3 शक्ति मैंने कहा, फिर शिव तत्व, फिर जीव तत्व। अभी ये जो अभी हम लोग कृष्ण और उनके इनकारनेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो सारे इनकारनेशन है ये किस प्रकार, इनका कैटेगरी क्या है, और कृष्ण से किस प्रकार प्रकट हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग अभी क्लियरली सुनेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि इस भौतिक जगत के हिसाब से कोई अवतार पहले आते हैं, कोई अवतार बाद में आते हैं, लेकिन ये जो क्योंकि इधर टाइम का इन्फ्लुएंस है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो लोग हमेशा के लिए है, शाश्वत रूप से है। तो भौतिक आध्यात्मिक जगत में जितने ऊपर में जाएंगे, भौतिक जगत में जितना ऊपर में जाएंगे तो टाइम का इन्फ्लुएंस कम होता है। आध्यात्मिक जगत में नो इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में वो हमेशा के लिए है। अभी उनका कैटेगरी कौन आगे है, कौन बाद में है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, वो कैसे समझेंगे अगर शास्त्र में वर्णन नहीं किया जाएगा। अगर शास्त्र में वर्णन नहीं किया जाएगा, जो आपके इन्फ्लुएंस के बाहर है, आपके इन्फ्लुएंस के जो बाहर है, वो आपने रिसर्च करके नहीं समझ सकते हैं। वो अगर कोई बताता है, जिसको पता है या जो ओरिजिन है, वो अगर बताता है तभी हम लोग उसको समझ पाएंगे। तो भगवान जब इस पृथ्वी में आते हैं तो शास्त्र देते हैं। शास्त्र जीव के कल्याण के लिए, क्योंकि जीव उनके पुत्र हैं, तो उनके उद्धार के लिए उनको शास्त्र प्रदान करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, तो उधर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, जीवेर निस्तारे कृष्ण वेद पुराण कहिला। तो अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण को भूल गए हैं, और उनको उद्धार करने के लिए जीवेर निस्तारे कृष्ण वेद पुराण कहिला। तो कृष्ण वेद पुराण कहे हैं, और व्यासदेव जी कृष्ण के इनकारनेशन है। वो कौन सा इनकारनेशन है वो मैं इधर आएगा आज के। तो व्यासदेव जी उसको रचना करते हैं। तो अभी भगवान के 6 प्रकार के इनकारनेशन है। भगवान शब्द का अर्थ आपने पहले सुना है, 6 ऐश्वर्य का जो मालिक है उसको भगवान कहते हैं। सर्वाकर्षति इति, क्योंकि उसके पास 6 अपुलेंस पूर्ण रूप में है, इसलिए वो सबको आकर्षित करते हैं। जिनके पास धन है उसको बोलते धनवान। जिसके पास ज्यादा धन है हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं। जिसके पास बहुत ज्ञान है, ज्ञानवान, उनके प्रति आकर्षित। भगवान मतलब जो 6 अपुलेंस, 6 प्रकार ऐश्वर्य, धन, शक्ति, ज्ञान, फिर सौंदर्य, रूप, फिर जश, फिर रिनाउंसिएशन, तो वैराग्य, 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य जिनके अंदर पूर्ण रूप में है, तो उसको कहते हैं भगवान। क्योंकि उनके अंदर पूर्ण रूप में है, इसलिए वो सबसे आकर्षित होंगे, और इसीलिए भगवान का नाम है कृष्णा। ऑल अट्रैक्टिव,
who can attract everyone and everything, living and non-living, सबको आकर्षित कर सकते हैं। हाँ, मनुष्य से लेके, देवता से लेके, पशु से लेके, पानी से लेके, वृक्ष से लेके, हाँ, पत्थर को लेके, हाँ, everybody is attracted in towards Krishna, and we have seen in Krishna's pastime in Vrindavan, how the cows are attracted to Krishna, the calves are attracted to Krishna, the deers are attracted to Krishna, every living entities are attracted to Krishna. Not only the girls are attracted. हम लोग सोचते हैं कि कृष्ण केवल वो गोपियों को ही केवल आकर्षित करते हैं। नो, तो जब डेमिगॉड्स आध्यात्मिक जगह स्वर्ग से आते हैं तो उनके पत्नियों के साथ आती है, और वो लोग कृष्ण की रासलीला दर्शन करने के लिए आती हैं। तो डेमिगॉड्स भी अट्रैक्टेड है, इंद्र भी अट्रैक्टेड है, बाकी सारे देवता भी अट्रैक्टेड है, और उनके पत्नियां भी अट्रैक्टेड है। तो उनको पता है कि कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, इसलिए वो भगवान है, क्योंकि उनके अंदर सारे ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है। तो अभी वो जो कृष्ण है, तो उनके 6 प्रकार के इनकारनेशन है। थोड़ा नीचे चलते पहले, 6 प्रकार के इनकारनेशन, थोड़ा नीचे चलिए, आप सब लोग ध्यान पूर्वक देखिए। चलिए नीचे, चलिए नीचे, फास्ट 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 और फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट। हाँ, देखिए, थोड़ा नीचे चलिए, नीचे 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 पूरा दिखाइए। हरि बोल। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है इधर। तो आप सब लोग को दिखाई दे रहे हैं? अरे एवरीबॉडी एबल टू सी? हाँ प्रभु, दिख रहा है। हाँ, यस प्रभु। हाँ, एक मिनट। ट्वेल्व आदित्य तो दिखाई, मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है? इधर लिखा रहेगा, ठीक है? तो इसमें एक तो पुरुषावतार कहाँ लिखा है? पुरुषावतार ठीक है, ऊपर है, लेकिन कैटेगरी में भी है। ठीक है, आप दूसरे स्लाइड में चलिए, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसके नीचे चलिए। हाँ, इसको क्लियर दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इज इट क्लियर? यस प्रभु, बट इट्स ब्लर। ठीक है, मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। हाँ? तो पहला है जुगावतार, ठीक है? आसानी से मैं आप लोगों को समझाने की प्रयास करता हूँ। जुगावतार तो 4 युग है, ठीक है? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलि युग, ठीक है? 4 युग में 4 युग का अलग अलग युग धर्म होता है। तो सत्य युग, तो इस युग धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान के एक विशेष इनकारनेशन होता है, स्पेसिफिक इनकारनेशन। उस युग धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, उसको कहते हैं युगावतार। तो कलियुग का युग धर्म क्या है? कलियुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन। तो कलेर दोषे निधेराजन अस्थियोक महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्तो संग परम रजेत। तो कलियुग के युग धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन, जग्गई संकीर्तन के प्राहि। तो कलियुग के युग धर्म कौन स्थापना किए हैं? चैतन्य बुद्ध। 4 नंबर में इधर है, जो फोटो दिया हुआ है 4 नंबर में देखिए, इधर जुगावतार लिखा हुआ है। तो सत्य युग में जुगावतार
जो है वो है रक्तो शुक्ल वर्ण है, शुक्ल। तो सत्ययुग में श्वेत वर्ण में आते हैं और त्रेता युग में रक्त वर्ण, रक्त शुक्ल तथा पीतो। तो त्रेता युग में आते हैं, त्रेता युग में आते हैं रक्त वर्ण धारण करके। दापर युग में आते हैं कृष्ण वर्ण, काले रंग होता है उनका। और कलि युग में आते हैं पीत वर्ण। तो कलि युग में युगावतार का जो रंग होता है पीत वर्ण लेके आते हैं। तो सत्य युग में हंस है, सत्य युग में हंस है। त्रेता युग में थोड़ा देखना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा है। एनीवे, तो एक हो गया जुगावतार, ठीक है। तो दूसरा है गुणावतार। गुणावतार 3 गुण है, सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 2 नंबर में लिखा हुआ है। तो गुणावतार, तो सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्य गुण के नियंत्रण है विष्णु भगवान, जो पालन करते हैं। सत्य गुण में पालन होता है और रजोगुण में क्या होता है, सृष्टि होता है। तो रजोगुण के नियंत्रण है भगवान ब्रह्मा। तो ब्रह्मा रजोगुण के अवतार है। और तमोगुण में संहार होता है, विनाश होता है। तो इसलिए तमोगुण के नियंत्रण है शिव जी। तो भगवान के 3 गुण है, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 गुण के 3 अवतार है। तो सत्य गुण के अवतार है विष्णु, रजोगुण के अवतार है ब्रह्मा, तमोगुण के अवतार है शिव जी। अभी ब्रह्मा का 2 कैटेगरी होता है। ब्रह्मा जब भगवान कभी सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं, ब्रह्मा के कार्य संपत्ति, जब कोई क्वालिफाइड ब्रह्मा नहीं रहते हैं तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन के इस पृथ्वी को पालन सृष्टि करते हैं। तो उस समय स्वयं भगवान ब्रह्मा बनते हैं। नहीं तो ज्यादातर समय कोई जीव ब्रह्मा के पद को प्राप्त करते हैं, और ब्रह्मा को पद प्राप्त करके इस सृष्टि को पाल करते हैं। तो वो जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान के मतलब जीव तत्व है, वो विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व है ब्रह्मा। तो इस प्रकार गुणावतार हुआ। सब लोग सुन रहे हैं ना? तो अभी जुगावतार हो गया, गुणावतार। अभी मनवंतर अवतार। तो मनवंतर अवतार मतलब मनु। तो ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग है और इस 1000 चतुर्युग में 14 मनु होता है जो शासन करते हैं। 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिन होता है और इस 1000 चतुर्युग में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है तो नया मतलब क्या बोलते हैं, जो सिलेक्टेड होंगे इलेक्शन में, जो सिलेक्ट होंगे वो क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। अभी अगर ये इलेक्शन में अगर जैसे अभी करंट जो अभी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर वो हार जाते हैं तो क्या होगा, नया एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है। अभी आध्यात्मिक जगत में ऐसा इलेक्शन नहीं होता है, उधर सिलेक्शन होता है। तो उधर सिलेक्टेड रहते हैं, पहले से क्वालिफाइड लोग सिलेक्टेड रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा चुने हुए रहते हैं। तो वो ब्रह्मा के जो 1000 चतुर्युग को एडमिनिस्ट्रेशन संभालने, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, देन एयर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, देन वेल्थ डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट को मेंटेन करने के लिए अलग अलग डेमीगॉड्स का स्ट्रक्चर होता है। तो उसका हेड होता है मनु।
सारे डेमीगॉड्स जो होते हैं उसका हेड होता है मनु। ब्रह्मा के पुत्र को मनु कहते हैं, समझ याद रहेगा, ब्रह्मा के पुत्र को मनु कहते हैं और मनु से आया है मानव। तो हम जितनी मानव जाति है ये मनु से आए हैं, ब्रह्मा से, ब्रह्मा के पुत्र और उनके पुत्र हैं मानव लोग। तब इन लोगों को क्या बोलते, कंट्रोल करने के लिए या इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए डेमीगॉड्स होता है, देवता लोग होता है। अभी इन देवता को मदद करने के लिए हर मनु के राजत्व में एक भगवान के अवतार आते हैं। मनु को हेल्प करने के लिए, मनु के एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करने के लिए, देवता को हेल्प करने के लिए, हाँ, क्योंकि वो लोग भी जैसे क्या होता है, कोई कंपनी का मालिक, ठीक है, कंपनी मालिक क्या किया, उन्होंने जगह खरीद लिया और फिर कुछ लेबर लोग और कुछ मैनेजर लोगों को उन्होंने खरीद लिया, खरीद के बोला कि आप उधर जाके इसके काम करो। हाँ? तो वो बोल देते हैं, लेकिन क्या होता है मालिक को भी जाके देखना पड़ता है, अरे काम सही से कर रहा है कि नहीं, संभाल पा रहा है कि नहीं तो क्या होगा, पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान ने सारे देवता लोगों को दायित्व दिया है, मनु को दायित्व दिया है, लेकिन वो लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत बार असुर लोग आके आक्रमण कर देता है, तो कैसे संभालेंगे, तो भगवान आके मदद करते हैं। तो उसको कहते हैं मनवंतर अवतार। हर मनु के राजत्व में भगवान के एक अवतार होते हैं जो आके उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करते हैं, देवता को मदद करते हैं, उसको कहते हैं मनवंतर अवतार। तो अभी जो वैवस्वत मनु है, अभी मनु का नाम है विवस्वान। तो उस मनु के राजत्व में भगवान के अवतार है वामन देव। तो वामन देव का कहानी आपको पता है, कैसे बलि महाराज ने आक्रमण किया था स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक आक्रमण करके असुर देवता लोगों को हरा के उनको सब जंगल में भेज दिया। देवता लोग क्या स्वर्ग में रहेंगे, सब जंगल में छुपे हुए हैं। हाँ? और स्वर्ग में कौन बैठा हुआ है, बलि महाराज। अभी देवता लोग गए ब्रह्मा के पीछे गए भगवान के पास, बोले भगवान हम लोग अभी सब खेती कर रहे हैं। बोले क्या तुम लोग खेती कर रहे हैं, क्या हुआ, बोले बलि महाराज आके सारा राज्य, सारे स्वर्ग दखल कर लिया। हाँ, तो हमें बचाइए। अभी क्या है, बलि महाराज तो भक्त हैं, बलि महाराज असुर है, लेकिन फिर भी बलि महाराज भक्त हैं। तो भगवान ने क्या किया, वामन रूप लिया। हाँ, तो वामन रूप लेके भगवान वो स्वर्ग में जन्म लिए भगवान कश्यप और दीति के पुत्र के रूप में। कश्यप और दीति के पुत्र के रूप में वामन देव के रूप में जन्म लिए, और जन्म लेके क्या किए, उन्होंने बलि महाराज के पास गए और बलि महाराज के पास जाके बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण के रूप में आए हैं भगवान विष्णु, आके बोले कि और बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और बोले कि हमें भिक्षा चाहिए। बोले आपको क्या भिक्षा चाहिए, बोले हमें 3 पैर भूमि चाहिए, 3 steps ऑफ लैंड। और बलि महाराज बोले अरे आप कैसे व्यक्ति है, इधर राजा खड़ा हुआ है, आपको सब कुछ दे सकता है, आप केवल 3 पग भूमि मांगा है, आपने राजा का अपमान किया है। फिर बलि महाराज ने कहा, वामन देव ने कहा देखिए राजन, ब्राह्मण के लिए ज्यादा क्या बोलते इच्छा शोभा नहीं देता है, ब्राह्मण को जितना मिलता है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। फिर वामन देव कहते हैं कि द होल वर्ल्ड विल बी अनसफिशिएंट। पूरे जगत के इंद्रिय भोग के विषय एक व्यक्ति के लिए असमाप्त रहेगा अगर वो अपने इंद्रियों को संयम करना नहीं सीखेगा। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय संयम को नहीं जानता है तो इस पूरे दुनिया के भोग के विषय उनके लिए अपर्याप्त, मतलब क्या बोलते हैं, लिमिटेड, उनके लिए कम लगेगा। तो इसलिए वामन देव कह रहे कि एक ब्राह्मण के लिए उतने से ही संतुष्ट रहना चाहिए जितना कि उनको जरूरत है।
तो हमें 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा, अरे आप कैसे हैं, आप ऐसा कुछ मांगिए कि आपको भीख मांगना ना पड़े। वामन देव को बलि महाराज कह रहे कि आप ऐसा कुछ मांगिए, ये गांव मांग लीजिए, आपको मैं गांव दे देता हूं। आप 10 लाख गाय मांग लीजिए, मैं आपको 10 लाख गाय दे दूंगा। आप चाहे तो, हाँ चाहे तो करोड़ सोना मांगिए, मैं आपको दे सकता हूं वो। तो इस प्रकार बलि महाराज ने वामन देव के सामने सामने बहुत अहंकार का परिचय दिया। तो भगवान बोल रहे, बलि तुमको पता नहीं है कि मैं तुम्हारा सब कुछ लेने वाला हूं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने ब्राह्मण के रूप में आए और बलि महाराज का सारा प्रॉपर्टी, एक पैर से पूरा ऊपर वाला लोक ले लिया, दूसरे पैर से नीचे वाला लोक ले लिया, और तीसरा पैर रखने का जगह ही नहीं है। तो तीसरा पैर रखने का जगह ही नहीं है। तो फिर बलि महाराज को भगवान ने कहा, अरे मेरे तीसरा पैर रखने का जगह दो, आपने प्रॉमिस किया है। तो बोले कि आपके तीसरा चरण जो है मेरे मस्तक पर रखिए। तो मैं राजा का प्रॉपर्टी और राजा अलग होता है। तो बलि महाराज ने कहा कि राजा का जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सेपरेट देन द पर्सन हिमसेल्फ, so therefore you have taken my property, now you take myself also। तो इस प्रकार बलि महाराज surrender himself completely at the lotus feet of Krishna। So but Krishna, उसका और बहुत बड़ा कहानी है, किस प्रकार बलि महाराज, कृष्णा वामन देव के रूप में बलि महाराज स्वर्ग राज्य ले लिया है और देवता को वापस दिया है। तो ये मनंतर अवतार है, जो मनु के राजत्व में हेल्प करने के लिए, देवता को एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करने के लिए भगवान आते हैं। उसी प्रकार और एक मनंतर अवतार है जिसको कहते हैं उसको कहते हैं, उसका नाम मोस्टली मत्स्य जो होता है, मत्स्य अवतार जो है ये मनंतर अवतार है। जब वेद को चुरा लिया गया था, असुर लोगों ने वेद को चुरा लिए थे, और ब्रह्मा जी के पास भी वेद नहीं था, तो वेद को रक्षा करने के लिए भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए थे। और वो जो असुर है, उस असुर के साथ लड़ाई किए थे। उस असुर को कोई मार नहीं पा रहा था, असुर के साथ लड़ाई करके वेद को उद्धार किए। वेद खो गया था और वेद को उद्धार किए, और फिर उन्होंने वापस वेद को ब्रह्मा जी को दिया और सत्यव्रत मुनि को दिए। इस प्रकार ये मनंतर अवतार है। तो क्या क्या हो गया, पहला कौन सा था, 2000 ना जोरे बंद कर दो। पहला है, यस बोलिए, पहला कौन सा है, कौन बोलेगा? पहला कौन सा अवतार बोला हमने? पहला कूर्मा अवतार प्रभु। कूर्मा, आप लोग क्लास हम लोग 6 प्रकार के अवतार का डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला कौन सा कैटेगरी है? मत्स्य, मछली। हाँ, मछली तो मनंतर अवतार में हो गया। बामन देव तो मत्स्य अवतार, मनंतर अवतार। देखिए 6 प्रकार की कैटेगरी है, अवतार की 6 प्रकार की कैटेगरी है। तो पहला कैटेगरी है पुरुषावतार। पुरुषावतार मतलब पुरुषावतार नहीं, जुगावतार। पहला हमने चर्चा किया जुगावतार। 4 युग में 4 प्रकार के अवतार होते हैं जो उस युग के युग धर्म को स्थापन करने के लिए आते हैं। तो कलि युग के जुगावतार हैं चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने संकीर्तन यज्ञ का स्थापना किया, जो कलि युग के जुगावतार है। तो दूसरा हमने चर्चा किया गुणावतार। गुण, 3 गुण, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो 3 गुण के नियंत्रण होते हैं। सत्य गुण के नियंत्रण है विष्णु,
रजोगुण के नियंत्रण है ब्रह्मा, तमोगुण के नियंत्रण है शिव। तो 3 गुण के 3 अवतार हो गया, गुणावतार। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे मनवंतर अवतार। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है। उस 1000 चतुर्युग को 14 मनु राज करते हैं। तो 14 मनु के अंडर में 71 चतुर्युग आता है। 71 इंटू 14 देखिए 1000 होता है। 1000 थोड़ा कम ज्यादा होता है। तो ऐसे एक एक मनु के राज के समय अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उस एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करने के लिए भगवान एक विशेष रूप में प्रकट होता है, स्वर्ग में या अलग अलग लोकों में प्रकट होता है। उसको कहते हैं मनवंतर अवतार। तो मनवंतर अवतार में इधर यज्ञ है, वेदा है, हरि है, अजीत है। हाँ, जैसे कूर्म भगवान, जैसे देवता और असुरों का युद्ध हो रहा था समुद्र मंथन के समय, कौन अमृत प्राप्त करेंगे, तो उस समय मोहिनी मूर्ति लेके भगवान आए हैं, वो मनवंतर अवतार है। फिर अजीत कूर्म के रूप में भगवान आए थे, उस क्या बोलते हैं, उस पर्वत के नीचे देवता को मदद करने के लिए, तो वो मनवंतर अवतार है। समझ में आ रहा है? बहुत क्लियरली मैं समझा रहा हूँ। हमारे पुराने बच्चे लोगों को भी इतना क्लियरली नहीं बोला जितना आप लोग को बोल रहे हैं। तो ये मनवंतर अवतार है। अभी कुछ अवतार बहुत सारा जगह में फिट होंगे, ठीक है। कभी युगावतार में भी है, कभी लीलावतार में भी है। तो एक एक अवतार 2-3 लिस्ट में आ सकता है। तो हमने युगावतार चर्चा किया, हमने मनवंतर अवतार चर्चा किया, फिर हमने गुणावतार चर्चा किया है, ठीक है। अभी हम लोग चर्चा करते हैं पुरुषावतार। पुरुषावतार 3 पुरुषावतार है। थोड़ा ऊपर जाएंगे लिस्ट थोड़ा, तो 3 पुरुषावतार है। तो कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। हाँ, ये 3 पुरुषावतार हैं। हाँ, बस। तो हम लोगों ने पहले ही क्रिएशन के चैप्टर में क्रिएशन के जो टॉपिक हैं आप लोगों को सिखाया गया था। जो लोग फॉलो अप डिवोटीज हैं एक बार चेक करिए, अटेंडेंस थोड़ा सा डाउन है, इधर 15 है, एटलीस्ट 23 होना चाहिए आप लोगों को लेके। तो जो बच्चे लोग नहीं हैं या जो बच्चे लोग हाँ क्या बोलते हैं छुप गए हैं, हाँ, तो उनको थोड़ा सा वापस लेके आइए। तो यस, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट पुरुषावतार। तो क्रिएशन के चैप्टर में हम लोग चर्चा किए थे कि किस प्रकार आप इधर देख सकते हैं। तो भगवान कृष्ण से पहले बलराम आते हैं, बलराम से फिर पहला चतुर्भुज से फिर नारायण आते हैं, नारायण से आते हैं दूसरा चतुर्भुज वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और दूसरा संकर्षण जो है उसको महासंकर्षण कहते हैं। महासंकर्षण से आता है पहला विष्णु, जिनका नाम है कारण दशाई विष्णु, जो कारण समुद्र में सोए हुए रहते हैं। और उस महाविष्णु के शरीर से, इधर आप फोटो देख सकते हैं, महाविष्णु सोए हुए हैं। राइट साइड में देखिए उधर पुरुषावतार लिखा हुआ है, 1 नंबर में पुरुषावतार लिखा हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है आप सबको? ये फोटो आप लोग को पहले भी दिखाया गया। तो महाविष्णु सोए हुए रहते हैं और उनके शरीर से अनंत ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है। उनके रोमकूप से, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, तो भगवान के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्राकट्य होता है। तो और फिर भगवान उस ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदशाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, उसको कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। उदक मतलब जल, तो गर्भोदक मतलब ब्रह्मांड के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं और फिर अपने शरीर के पसीने से, अपने शरीर से निकला हुआ पसीने से भगवान पूरे ब्रह्मांड को भर देते हैं। तो सोचिए कितना क्षमता है, कितना पसीना निकलता है उनके शरीर से। तो भगवान को सृष्टि करने के लिए बाहर के किसी को हेल्प की जरूरत नहीं है। जैसे आपको कुछ सृष्टि करना चाहते हैं, सब कुछ बाहर से लेना पड़ेगा।
जितने भी आज साइंटिस्ट लोग सृष्टि कर रहे हैं सब कुछ बाहर से लिया जाता है और ये चीज वो चीज वो चीज ये चीज 4-5 चीज मिला के नया कुछ बनाते हैं। हाँ? तो बट द क्रिएशन का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, बिकॉज द सुप्रीम लॉर्ड इज द प्राइमरी क्रिएटर। सुप्रीम लॉर्ड इज द प्राइमरी क्रिएटर, ब्रह्मा इज सेकेंडरी क्रिएटर। और हम लोग थोड़ा सा ब्रह्मा का नकल करते हैं और बोलते मैंने बनाया है, लेकिन अल्टीमेटली उसकी उपादान है भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हाँ, और सीड्स, जैसे अलग अलग प्रकार के जो खेती होता है उसका जो बीज है सब भगवान देते हैं। तो अल्टीमेटली भगवान उसको इज द मेन और द प्राइमरी क्रिएटर, प्रिमेवल लॉर्ड इसलिए कहते हैं। तो भगवान को सृष्टि करने के लिए बाहर से किसी का हेल्प जरूरत नहीं होता है। ये जितने भी जीवात्मा भगवान से सृष्टि हुआ है, जितने भी सृष्टि के उपादान हैं, 24 तत्व हैं, वो भगवान से प्रकट होते हैं। तो आत्मा भी भगवान देते हैं और सृष्टि का उपादान भी भगवान देते हैं, और भगवान ब्रह्मा को बनाते भी हैं और ब्रह्मा को शक्ति भी देते हैं सृष्टि करने के लिए। तो गर्भोदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं और उस ब्रह्मांड के गर्भ में प्रवेश करके सोए हुए रहते हैं। इस ब्रह्मांड के गर्भ में भगवान सोए हुए रहते, इसलिए ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों होता है? बिकॉज द सुप्रीम लॉर्ड इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। The Supreme Lord is in the center of the universe. Therefore, anything you throw out up is going down. Why it is going down? How about the law of gravitation? But who have created this law of gravitation? Law of gravitation by chance हो गया? Law means law of gravitation. Okay, there is law. If there is law, there must be law maker. Now Newton ने research करके निकाला है law of gravitation. But did Newton created this law of gravitation? Did Newton created this law? He found out that there is a law. He found out there is law and everybody under this law. And therefore there must be someone who is governing the law. कोई एक जन होना चाहिए जो लॉ को गवर्न कर रहे हैं, लॉ को रूल कर रहे हैं। And who is that? Who is he? बताइए आप लोग, जितने भी बच्चे लोग ऑनलाइन में हैं, कौन है वो? यस, आप लोगों के गले में से आवाज नहीं आ रहा है। ओके, कृष्णा, महाविष्णु गर्भोदक्ष। ओके, कृष्णा इज अल्टीमेट, सो गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के गर्भ में रहते हैं। ही इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है और फिर उस ब्रह्मांड के अंदर भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में जाते हैं और कारण समुद्र में सोए रहते हैं ब्रह्मांड के सेंटर में। ही इज द रीजन बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी उनके नाभि कमल से ब्रह्मा का उत्पत्ति होता है। ब्रह्मा का जन्म होता है गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से, और फिर ब्रह्मा को भगवान आदेश देते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि का वे ज्ञान देते हैं। और फिर ब्रह्मा क्या करते हैं? ये सारे यूनिवर्स का सृष्टि करते हैं। सारे जो यूनिवर्स का जो अभी भगवान ने क्या किया, खाचा बना दिया है। खाचा बना दिया है, सारे मटेरियल्स दे दिया है, और ब्रह्मा क्या करते हैं? अभी सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ब्रह्मा जी ने क्या करते हैं? ये जो 84 लाख ऑफ स्पीसीज जो होता है, 84 लाख प्रकार के जीव जो नहीं होता है, उसका अलग अलग प्रकार के जो शरीर होता है उस शरीर को बनाते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं? आत्मा प्रदान करते हैं। और फिर भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, और हर अणु परमाणु के अंदर परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा हैं। तो एक विष्णु ब्रह्मांड का सृष्टि करते हैं,
दूसरा विष्णु ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, हाँ, और पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। और तीसरा विष्णु जो होता है वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में सारे अणु परमाणु के अंदर रहते हैं। ये तीनों विष्णु जो है भौतिक जगत में है। ये तीनों जो विष्णु है, देखिए इधर आपको राइट साइड में लिखा गया है, राइट साइड में लिखा गया मैटेरियल वर्ल्ड, सॉरी लेफ्ट साइड के एकदम साइड में दिखा गया, देखिए मैटेरियल वर्ल्ड। थोड़ा नीचे जाइए, नीचे अक्षय को नीचे जाइए, और ऊपर में लिखा है देखिए गोलोक वृंदावन, ऊपर में गोलोका, और नीचे जाएंगे तो नीचे जाइए, गो डाउन, हाँ लेफ्ट साइड में देखिए वैकुंठा, हाँ देन विरजा, एंड देन देयर इज मैटेरियल वर्ल्ड। तो मैटेरियल वर्ल्ड में ये तीन अवतार जो है ये पुरुष अवतार है। तो गर्भदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु का एबोर्ड है, क्षीरोदक्षाई विष्णु का धाम है ब्रह्मलोक में। जब डेमिगॉड्स का प्रॉब्लम होता है तो वो लोग एक क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाके रिक्वेस्ट करते हैं, ब्रह्मा के साथ जाके क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, हाँ अभी इधर ये हमारा ये चोरी हो गया, इधर हाँ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, मतलब असुर लोगों ने अटैक किया है, राक्षस लोग, हाँ या क्या बोलते यक्ष लोग, हाँ या असुर लोग, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी के असुर है। राक्षस होता है, असुर होता है, दैत्य होता है, दानव होता है, अलग अलग कैटेगरी है। तो इन लोग अटैक करते तो भगवान प्रकट होते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार ये तीन अवतार को पुरुष अवतार कहते हैं। पुरुष अवतार, तीन पुरुष जो इस भौतिक जगत में रहते हैं, सृष्टि कार्य करते हैं, उनको पुरुष अवतार कहते हैं। तो युगावतार, उसके बाद गुणावतार, उसके बाद मनवंतर अवतार, उसके बाद पुरुषावतार, उसके बाद है लीलावतार जो एक नंबर पे है, लीलावतार। तो भगवान के अनेक अवतार होता है, इस पृथ्वी में विशेष लीला करने के लिए आते हैं। तो उस लीला के द्वारा वो कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो उस लीला के द्वारा भगवान कुछ शिक्षा देना चाहते हैं और उनके भक्तों को कृपा करना चाहते हैं, भक्तों को उद्धार करना चाहते हैं, और इसलिए भगवान अलग अलग लीला संपादन करने के लिए इस पृथ्वी में आते हैं। उनके सारा जो आध्यात्मिक जगत में उनका एबोर्ड है, आध्यात्मिक जगत में उनका धाम है। He have his own abode in the spiritual world, but he appear to perform divine pastime. तो इसमें जैसे मत्स्य है, मत्स्य का नाम अभी क्या बोलते हैं, मनवंतर अवतार में भी आएगा, लेकिन लीलावतार में भी है, बिकॉज ही हैव परफॉर्म द डिवाइन पास्टाइम। मत्स्य के रूप में विशेष बड़ा करके लीला किया, फिर समुद्र से वेद को उद्धार किया, और पूरे क्या बोलते हैं वो सब सत्यव्रत मुनि को, सब सत्यव्रत मुनि के सारे क्या बोलते हैं लोग को, सत्यव्रत मुनि एक्चुअली पूरे पृथ्वी के राजा थे। तो प्रलय के समय वो भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और सत्यव्रत मुनि और सारे मर्त्यलोकवासी को उद्धार किए थे, वेद को रक्षा किए थे। तो मनवंतर अवतार, उसी प्रकार नरसिंह देव भी लीलावतार में आते हैं, मत्स्य अवतार भी लीलावतार में आते हैं, जुगावतार में भी आते हैं, और फिर लीलावतार में इधर रामचंद्र भी, रामचंद्र जुगावतार में भी आएंगे, त्रेता युग के जुगावतार है, रामचंद्र है, और फिर लीलावतार में भी है, रामचंद्र है। तो कपिल देव लीलावतार में है, नारायण ऋषि लीलावतार में है, और लीलावतार में सबसे मुख्य है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण सबसे दिव्य और प्रेममयी लीला किए हैं। तो इसलिए कृष्ण को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम।
जितने भी अवतार हैं, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। तो कृष्ण गिरिराज गोवर्धन धारण किया, कृष्ण रास लीला किया है, कृष्ण दामोदर लीला किए हैं, कृष्ण गोवर्धन धारण लीला किए हैं। कृष्ण की जन्म लीला भी अद्भुत है। भगवान स्वयं लेकिन कारागार के अंदर प्रकट हुए हैं। तो कृष्ण माखन चोरी का लीला किया है। कृष्ण नौल कुबेर मणिग्रीव को उद्धार किया है। तो इसलिए कृष्ण की लीला अद्भुत और प्रेममयी और दिव्य है। तो इसलिए कृष्ण सारे लीला पुरुषोत्तम, और कृष्ण दापर युग के जुगावतार भी है। तो कृष्ण इधर जुगावतार भी है, कृष्ण लीला अवतार भी है, और कृष्ण सारे अवतार के स्रोत भी है। तो इस प्रकार लीला अवतार हो गया। और छठा, अंतिम छठा जो है उसको कहते हैं शक्तावेश अवतार। शक्तावेश अवतार, आवेश, आवेश मतलब जब संचार होता है, शक्ति संचार होता है। तो भगवान के शक्ति जब किसी जीव के ऊपर आविष्ट होता है तो जीव भगवान के जैसे कार्य करते हैं। समझ गए? ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। भगवान के शक्ति का आवेश कभी कभी किसी विशेष चुने हुए जीव के ऊपर होता है, और तब वो जो जीव है भगवान के इच्छा से, भगवान की कृपा से भगवान के जैसे कार्य करने में समर्थ होते हैं। तो उनको कहते हैं शक्तावेश अवतार। तो ये जो शक्तावेश अवतार, ये भगवान की अवतार है, लेकिन ये जीव तत्व है। ऐसे हम लोग 4 तत्व का बारे में चर्चा की है, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व। तो जीव तत्व जो है भगवान, मतलब बाय पोजीशन दे आर नॉट गॉड, दे आर जीवा, द लिविंग एंटिटी। बट sometimes some selected living entity they are क्या बोलते हैं, empowered, इसको कहते हैं empowered in, they are empowered by the supreme lord, his special potency, and they can act like the supreme lord. So they are called shaktavesh avatar. For example Vyasadev is jeev tattva. He is a living entity, but he is empowered by the supreme lord. तो व्यासदेव जी को क्या शक्ति प्राप्त हुआ था? लिखने की शक्ति, लेखनी की शक्ति प्राप्त हुआ है। इसलिए उन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों का रचना कर दिया है। वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, इतने सारे ग्रंथ किसी मनुष्य के लिए लिखना संभव नहीं है। तो इसलिए शक्तावेश अवतार। उसी प्रकार भक्तावेश अवतार, भक्ति के अवतार हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि भगवान के भक्ति शक्ति के अवतार है। तो नारद मुनि जिधर भी जाते हैं वो लोगों को भक्त बना देते हैं। नारद मुनि वो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं, उसको भी भक्त बनाए हैं। जो असुर के पुत्र है उसको भक्त बनाए हैं। नारद मुनि वो ध्रुव महाराज वो राजा के पुत्र है, उसको भक्त बनाए हैं। नारद मुनि वो रत्नाकर जैसे डाकू को भी भक्त बनाया है। नारद मुनि क्या बोलते हैं, एक सांप था, वो सांप भी नारद मुनि के संस्पर्श में आके वो भक्त बने। तो नारद मुनि एक ऐसे महान भक्त हैं, तो जिधर ही जाते युधिष्ठिर महाराज के राजत्व में, और क्या बोलते सबसे गिरे हुए लोगों के पास भी जाते हैं। तो जिधर ही जाते उनके प्रभाव से सब लोग भक्त बन जाते हैं, और जिधर भी जाते वो भगवान के महिमा का कीर्तन करते रहते हैं, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स। तो नारद मुनि भक्ति के अवतार है। उसी प्रकार सृष्टि के शक्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी भगवान के शक्तावेश अवतार में आते हैं। इधर ब्रह्मा जी भगवान के गुणावतार हैं, और दूसरे ओर शक्तावेश अवतार, क्योंकि सृष्टि करने की शक्ति ब्रह्मा जी को, एक जीव है, ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार पालन करने की शक्ति पृथु महाराज है, जो राज्य पालन, प्रजा पालन बेस्ट हैं, प्रजा पालन में श्रेष्ठ हैं पृथु महाराज। तो पृथु महाराज शक्तावेश अवतार है। उसी प्रकार दुष्टों को दमन करने की,
दुष्ट को दमन करने की शक्ति प्राप्त हुआ है परशुराम। तो परशुराम भी भगवान के शक्तावेश अवतार है। ये जीव तत्व है, तो ये विष्णु तत्व नहीं है। परशुराम जीव तत्व है जो दुष्ट को दमन करने की शक्ति प्राप्त हुआ है परशुराम को। तो परशुराम भी शक्तावेश अवतार है। तो इस प्रकार जब जीव को, विशेष चुने हुए जीव को शक्ति प्राप्त होता है तो उनको शक्तावेश अवतार कहा गया है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस कलियुग के बारे में वर्णन आता है और उधर कहा गया है कि किस प्रकार गंगा जी इस पृथ्वी लोक छोड़ के जाना चाहती थी, क्योंकि कलियुग के लोग बहुत पाप कार्य करेंगे। तो भगवान ब्रह्मा जी गंगा जी को लेके आई है और कृष्ण भगवान के पास, और कृष्ण के पास आके ब्रह्मा जी बोल रहे कि हे प्रभु, ये गंगा जी इस पृथ्वी को छोड़ के जाना चाहती हैं। तो भगवान उनको बोले आप मत जाइए, मेरे अप्रकट के 5000 साल बाद मेरे एक सेनापति भक्त आएंगे, मेरा एक सेनापति भक्त आएंगे और वो मेरे नाम को सारे पृथ्वी में लेके जाएंगे, और फिर सारे पृथ्वी में लोग मेरा नाम का जप और कीर्तन करेंगे। और उस समय ये कृष्ण भावना का स्वर्ण युग चलेगा। और उस समय सारे विश्व के लोग ये हरिनाम करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे विश्व में लोग इस हरिनाम का कीर्तन करेंगे और फिर वो सारे विश्व के लोग कीर्तन करते हुए भारत वर्ष में आएंगे, और भारत वर्ष में आके वो लोग आपकी पवित्र नदी में नहाएंगे। और जब वो लोग आपकी नदी में नहाएंगे, आपके पवित्र जल में नहाएंगे और हरिनाम करेंगे, तो आपके सारे पाप धुल जाएगा। तो गंगा सबकी पाप धोते हैं, लेकिन और इस प्रकार गंगा में बहुत पाप जमा होता है, लेकिन वो पाप नष्ट हो जाता है जब भगवान के भक्त लोग आके उसमें नहाते हैं। तो तब गंगा जी को भगवान ने कहा था कि आप मत जाइए। तब गंगा जी ने रह गए, क्योंकि कलियुग स्वर्ण युग होगा और उसमें भगवान के सेनापति भक्त सारे विश्व में हरिनाम का वितरण करेंगे। और वो सेनापति भक्त कौन है? वो सेनापति भक्त कौन है? कौन बोलेगा? वॉइस की बात, डिवोटीज को छोड़ के बाकी लोग, वो सेनापति भक्त कौन है जिन्होंने हरिनाम सारे विश्व में लेके गए? यस, बाकी लोग क्या सो गए? तो शिला प्रभुपाद वो सेनापति भक्त हैं जिन्होंने सारे विश्व में हरिनाम लेके गए हैं। तो इसलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है कि जो सेनापति भक्त हैं, जो भगवान के वाणी सारे विश्व में लेके जाएंगे, वो भी एक शक्तावेश अवतार है। तो इस प्रकार जो शिला प्रभुपाद जो कार्य किया है वो किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। आपने 70 साल की उम्र में बिना कोई पैसा भिखारी के जैसे गए और एक आंतरजातिक संस्था, कृष्ण भावनामृत संस्था का शुरुआत किए, उसका स्थापना किए और हजार करोड़ों लोगों को कृष्ण भावना में प्रेरित किए इतने कम समय में, केवल 10 साल के समय में। और उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था। केवल 10 साल में उन्होंने 80 वॉल्यूम्स ऑफ बुक लिखा है। कैन यू इमेजिन? पूरे श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता और 80 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स
लिखा है जो किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। 108 मंदिर बनाए केवल 10 साल में। हाँ, जिधर एक मंदिर बनने में 10-15 साल लग जाता है, बड़ा बड़ा मंदिर बनने में कितना साल लगता है, लेकिन प्रभुपाद जी 10 साल में 108 मंदिर बनाए। तो कोई साधारण व्यक्ति के लिए या कोई असाधारण व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त नहीं होता है तो वो एक कार्य नहीं कर सकते। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण और अलग अलग जगह में प्रभुपाद के बारे में वर्णन है। तो इसलिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली कि हम लोग किसी भाग्य से, सौभाग्य से इस कलयुग में जिधर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं और जिधर श्रील प्रभुपाद है, ऐसे महान भक्तों से जुड़ने की, हमें ऐसे महान भक्तों की संग में हमें जोड़ने की सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। पुरुषावतार, फिर आप लोग बोलिए, पहले पुरुषावतार, फिर गुणावतार, पहले जुगावतार, फिर गुणावतार, फिर मनंतर अवतार, फिर दूसरा कोई बोलिए, हाँ लीलावतार, फिर और एक जन है, और एक है, हाँ सप्तावेश अवतार लास्ट है, उसके पहले और एक है लीलावतार, और एक है पुरुषावतार। पहले जुगावतार, उसके बाद गुणावतार, उसके बाद गुणावतार, उसके बाद मनंतर अवतार, उसके बाद पुरुषावतार, पुरुषावतार, उसके बाद लीलावतार, उसके बाद मनंतर अवतार, सॉरी उसके बाद सप्तावेश अवतार, सप्तावेश अवतार। तो ब्रह्मा जी भगवान के सप्तावेश अवतार और नारद मुनि भी भगवान के सप्तावेश अवतार। ये लोग जीव तत्व है, लेकिन फिर भी इनको भगवान कहा जाता है, जैसे भगवान ब्रह्मा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के सप्तावेश अवतार है या भगवान के गुणावतार है। ये भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के सप्तावेश अवतार में आते हैं, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। हाँ, और फिर उसी प्रकार शिव जी भगवान के गुणावतार है। तो भगवान है कृष्ण, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान के गुण के अवतार है, इसलिए वो उनको भगवान शिव जी कहते हैं। उसी प्रकार कभी कभी नारद मुनि को भी भगवान कहा गया है। किसी किसी जगह में नारद मुनि को भगवान कहा गया है, तो क्योंकि भगवान के सप्तावेश अवतार है। लेकिन भगवान, आदि भगवान या परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान कौन है? कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांशो कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अभी मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा, 5 से 10 मिनट में खत्म करूंगा। तो आप लोग सब लोग ध्यान पूर्वक रहिए। तो फिर आज का पार्ट 1 खत्म होगा। तो थोड़ा हम लोग ऊपर जाएंगे। तो ये जो 6 प्रकार के भगवान के अवतार के कैटेगरी हैं, तो 6 प्रकार के भगवान के जो कैटेगरीज हैं, ये सारे कहां से आते हैं? चलिए ऊपर चलिए, कृष्ण से आते हैं। तो इसलिए हम लोग जो श्लोक पढ़े हैं, एते चांशो कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान के बहुत सारे अंश और कला, एक्सपेंशन और द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। तो कृष्ण आदि पुरुष है। कृष्ण इज ओरिजिन ऑफ ऑल इनकारनेशन। सो देयर इज ऑल इनकारनेशन मींस दिस 6 टाइप, 6 प्रकार के इनकारनेशन है। तो 6 टाइप ऑफ इनकारनेशन जो है, इसका ओरिजिन है कृष्णा। इसलिए हम लोग कृष्ण नाम का जप करते हैं,
क्यों कृष्ण नाम का जप करते हैं? क्योंकि कृष्ण आदि पुरुष हैं, कृष्ण सारे अवतार के अवतारी है। तो इसलिए अगर आप कृष्ण के नाम का जप करेंगे, सारे भगवान का नाम का जप करना हो जाता है। इसलिए शिव पुराण में शिव कहते हैं कि 1000 विष्णु नाम, अगर आप एक राम नाम जप करेंगे 1000 विष्णु नाम जप करने के समान फल प्राप्त होता है। राम राम रामेति मनोरमेत सहस्र नाम तत्तुल्यम नाम राम बरानने, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। एक नाम जप करने से 1000 विष्णु नाम का फल प्राप्त होता है। और अगर आप एक कृष्ण नाम जप करेंगे 3 राम नाम का फल प्राप्त होता है। एक कृष्ण नाम जप करेंगे तो 3 राम नाम, और 3 राम नाम इक्वल टू 3000 विष्णु नाम। तो शिव पुराण में शिव जी इस प्रकार कहते हैं। इसलिए हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशको नाम, ये 16 नाम कली कल्मष नाशनम कैन डिस्ट्रॉय ऑल द कंटेमिनेशन ऑफ कली। कलियुग के हर कल्मष को नाश कर सकते हैं, ना तो परतर उपाय, इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। सर्व वेद सुदिश्यते, और सारे वेद में यही कहा गया है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर, कृष्ण है आदि पुरुष, उसको कहते हैं स्वयं रूप। स्वयं रूप कदा मह्यम, तो स्वयं रूप। तो स्वयं रूप मतलब जैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान, स्वयं भगवान मतलब स्वयं रूप, स्वयं रूप मतलब स्वयं भगवान। तो कृष्ण के तो स्वयं रूप जो है, कृष्ण की पहला प्रकाश, उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। कृष्ण की पहला एक्सपेंशन जो होता है वो 2 प्रकार की है, उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश जो होता है मतलब उनका एक्सपेंशन है। तो उसका 2 प्रकाश, दो कैटेगरी है। एक है वैभव प्रकाश, एक है एक है वैभव प्रकाश, दूसरा है प्रभाव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश, एक है वैभव प्रकाश, दूसरा है प्रभाव प्रकाश। तो वैभव प्रकाश जो होता है वो बलराम जी हैं, जो भगवान से अभिन्न है लेकिन भगवान के जैसा दिखने में नहीं है। भगवान से अभिन्न है लेकिन भगवान के जैसा दिखने में नहीं है। तो भगवान से थोड़ा डिफरेंट है लेकिन भगवान से अभिन्न है, उनके शक्ति भगवान से अभिन्न है। तो कृष्ण और बलराम में उनके शक्ति में कोई भेद नहीं है, केवल उनके कलर में भेद है। कृष्ण की रंग श्याम वर्ण की है, बलराम जी के रंग श्वेत वर्ण की है। कृष्ण मयूर पुच्छ धारण करते हैं, बलराम जी सफेद पुच्छ धारण करते हैं। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और बलराम जी के पास हल रहता है। तो इसलिए कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, शक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों सेम है, केवल रंग अलग है। तो और एक भेद है कि कृष्ण आदि है, कृष्ण से बलराम आते हैं। और जितने सारे इनकारनेशन के बारे में हमने चर्चा किया है, अभी जितने सारे 6 प्रकार के इनकारनेशन के बारे में चर्चा की है, सब बलराम से आते हैं। ये जितने सारे हैं ये सब बलराम से आते हैं। वैभव प्रकाश जो बलराम जी हैं, कृष्ण की पहला प्रकाश है बलराम, और जितने भी सारे एक्सपेंशन है, पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, लीलावतार में केवल कृष्ण को छोड़ के बाकी सारे अवतार जो हैं, मनंतर अवतार, सब बलराम जी से आते हैं। एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन, बलराम जी के प्रकाश, उनके प्रकाश, इस प्रकार आते हैं। तो एक हो गया वैभव प्रकाश, दूसरा हो गया प्रभाव प्रकाश। तो प्रभाव प्रकाश मतलब देखने में भी कृष्ण के जैसे हैं और कृष्ण की शक्ति भी है, कृष्ण जैसे शक्ति है और कृष्ण के जैसा दिखने में भी है।
उसका दो उदाहरण है, दो उदाहरण इधर दिया गया है। देखिए, एक उदाहरण है जब कृष्ण रास नृत्य कर रहे थे तो कृष्ण अपने को हजार हजार प्रकार से अपने आप को प्रकट किए थे। When Krishna was performing rasa dance in Vrindavan, he expanded himself in thousands and millions of forms, and then he danced with the millions of the gopis. जब कृष्ण रास नृत्य कर रहे थे, ऐसे नहीं कि 10, 5, 14, 15, 20, 100 लोगों के साथ डांस किया गया है। पैसा देके बहुत लोगों को जुगाड़ किया गया है, जैसे बॉलीवुड में जुगाड़ किया जाता है। नहीं, कृष्ण जब डांस किए थे, कृष्ण का डांस अद्भुत है। लेकिन और कृष्ण के और एक डांस मैं बोलता हूँ, कृष्ण डांस ऑन द हुड्स ऑफ कालिया। कालिया नाग के फन के ऊपर डांस किए थे। तो लोग रास डांस करना चाहते हैं, लेकिन रास डांस करने से पहले आपको थोड़ा सा सांप के फन के ऊपर भी डांस करके दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण की नकल नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान है, कृष्ण की नकल करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? मारे जाएंगे। कृष्ण की नकल करने के लिए जाएंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए कृष्ण भगवान है, कृष्ण की सेवक बनिए। तो ये जो जितने भी गोपियां हैं, ये अलग अलग जन्मों में कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किए थे, तप किए थे। इस जब रामचंद्र आए तो दंडकारण्य में बहुत सारे ऋषि लोग थे, वो तप कर रहे थे। जब रामचंद्र उनके सामने आए, वो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रहे थे। और जब रामचंद्र आए तो रामचंद्र के दिव्य रूप का दर्शन करके उन इतना आकर्षित हो गए, बोला कि आपको हम पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो रामचंद्र ने कहा, अरे आप कैसे हमें पति के रूप में प्राप्त करेंगे? हम तो एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हैं, एक पत्नी व्रत, मैं दूसरा शादी इस लीला में नहीं करने वाला हूँ। तो इसलिए रामचंद्र भगवान, वो मुनि ऋषि लोगों को इतना शक्ति था, मुनि ऋषि चाहते तो अभी स्त्री का रूप धारण कर लेंगे। पुरुष और स्त्री तो शरीर का होता है। तो रामचंद्र ने कहा कि अगले जीवन में, जब अगले युग में मैं जब आऊंगा, उस समय मैं लीला अवतार रहूंगा, और उस समय मैं आप लोगों की इच्छा पूरी करूंगा। तो इस प्रकार जब भगवान द्वापर युग में प्रकट हुए, तो इतने सारे जो मुनि ऋषि लोग भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते, उसको कहते हैं व्रतचारी, ऋषिचारी। ऋषि के रूप में थे, व्रत किए थे। ऐसे बहुत सारे लोग जो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते, तो वो लोग उस समय जन्म लिए। और फिर स्वर्ग से बहुत सारे देवी लोग भी आई थी कृष्ण के रास लीला में भाग लेने के लिए। तो इस प्रकार कृष्ण ने करोड़ गोपियों के साथ उन्होंने रास नृत्य किया। जब रास नृत्य किया तो कृष्ण ने अपने जैसा ही दिखने में, कृष्ण के जैसा ही दिखने में, एग्जैक्टली जैसे कृष्ण के जैसा, कृष्ण के जैसा नहीं, एग्जैक्टली कृष्ण के जैसे उन्होंने लाखों अपने रूप का प्रकाश किया। और कृष्णा डांस विथ ऑल द गोपीज। तो इसको कहते हैं कृष्ण के प्रभाव प्रकाश। तो कृष्ण के जैसा ही शक्ति है और कृष्ण के जैसा ही दिखने में है। और एक है द्वारका में, जब कृष्ण ने 16,108 पत्नियों से विवाह किया था, तो कृष्ण ने अपने आप को 16,108 रूप में प्रकाश किया था। तो वो सारे कृष्ण के जैसे ही दिखने में थे, थोड़ा सा अलग अलग था, क्योंकि जैसा क्या बोलते हैं, रानी है, उसके जैसा मैच करके कृष्ण अपने आप को प्रकट किए। तो एकदम परफेक्ट मैच। तो और फिर कृष्ण ने 16,108 रूप में कृष्ण अपने आप को प्रकट किए। तो ये सारे कृष्ण हैं, ये सारे कृष्ण के पर्सनल एक्सपेंशन है। दे आर नॉट एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन। मतलब कृष्ण की प्रकाश को कहते हैं कोला। और कृष्ण के पर्सनल एक्सपेंशन जो कृष्ण से एकदम अभिन्न है, वो द्वारका में भी है। 16,108 पत्नियों के साथ विवाह करने के लिए कृष्ण ने किया था। और कृष्ण जब वृंदावन में रासलीला किए थे, तब कृष्ण ने अपने आप को अपने आप को अनंत रूप में विभाजित किए थे, सारे गोपियों के साथ नृत्य करने के लिए। और फिर तो इस प्रकार वैभव प्रकाश और प्रभाव प्रकाश,
ये सब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ये सारा इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं था। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो ये सारे इंफॉर्मेशन उन्होंने डिटेल्स दिया रूप गोस्वामी पाद को, और उससे हम लोग कृष्ण के बारे में असली तरीके से जान पाए हैं। तो अभी कृष्ण के पहला प्रकाश है बलराम। बलराम से आता है पहला चतुर्भुह। पहला चतुर्भुज उसको कहते तद एकात्मन रूप। तद एकात्मन रूप थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कैटेगरी को समझिए, मतलब ऊपर से नीचे किस प्रकार आ रहा है वो समझिए, ठीक है। तो तद एकात्मन मतलब उनका एक्सपेंशन। तो बलराम जी के एक्सपेंशन है पहला चतुर्भुह। पहला चतुर्भुह में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। उसके बाद वो द्वारका में रहते हैं, और उनसे आते हैं पहला, नीचे जाइए, उनसे आते हैं नारायण, जो है वैभव विलास। तो उनसे आते हैं नारायण। नारायण से आते हैं सेकेंड चतुर्भुह। सेकेंड चतुर्भुह फिर से वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न ये अयोध्या में रहते हैं। तो ये अयोध्या में जब आते हैं, आध्यात्मिक जगत में उसको साकेत कहते हैं, और जब वो लोग इस पृथ्वी में आते तो उसका नाम होता है अयोध्या। और उधर ये जो चतुर्भुह हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में रहते हैं। राम है वासुदेव, लक्ष्मण है संकर्षण, अनिरुद्ध है भरत, और प्रद्युम्न है शत्रुघ्न। तो इस प्रकार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न दूसरा चतुर्भुह। और फिर दूसरा चतुर्भुह में जो संकर्षण है, दूसरा चतुर्भुह में जो संकर्षण है, उससे आते हैं पहला विष्णु, जिनका नाम है काननदशाई विष्णु। और उससे आते हैं गर्भदक्षाई विष्णु, उससे आते हैं क्षीरदक्षाई विष्णु। तो जो गर्भदक्षाई विष्णु से लेके नीचे जितने भी अवतार हैं, ये भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक जगत में भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो ऊपर जाइए। तो अभी ये जो ऊपर में जितने भी अवतार हैं, उसमें मैं एक चीज मिस किया। इधर कितने लोग हैं? इधर जय सरकार, पिता, मिंटू, गोपाल, दीक्षा, देवव्रतो, विकास, संग्राम, ठीक है। तो अभी मैं कृष्ण से बलराम, स्वयं रूप से स्वयं प्रकाश। और स्वयं प्रकाश का दो कैटेगरी है, वैभव प्रकाश और प्रभव प्रकाश। तो वैभव प्रकाश जो है रासलीला में, वैभव प्रकाश है बलराम जी, जो भगवान से अभिन्न है, लेकिन भगवान अतः उनके रूप अलग है। और प्रभव प्रकाश मतलब भगवान के जैसा दिखने में भी है, भगवान के जैसा दिखने में भी है, और भगवान के जैसा शक्ति भी है। उसको कहते हैं वैभव प्रकाश। तो सॉरी, प्रभव प्रकाश। अभी आप थोड़ा सा दूसरा स्लाइड में चलिए। थोड़ा ऊपर चलिए। सेम चार्ट है, देखिए इधर कृष्ण से बलराम से पहला चतुर्भुह, देखिए सर्कल करके, क्या बोलते, सर्कुलेट करके दिया हुआ है। अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न। उससे आते हैं नारायण से आते हैं सेकेंड चतुर्भुह, अनिरुद्ध, वासुदेव, महासंकर्षण, प्रद्युम्न। तो ये जो सेकेंड चतुर्भुह है, वासुदेव, अनिरुद्ध, महासंकर्षण, प्रद्युम्न, ये लोग राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और ऊपर में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, कृष्ण बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, दैट इज द्वारका में है। तो अभी इतना तक सब लोग आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। अभी ये जितने भी इनकारनेशन जो चतुर्भुह हैं, ठीक है, तो उनके साथ साथ ये जो नारायण है, ये वैकुंठ में रहते हैं, और उनके बहुत सारे इनकारनेशन हैं। वो दूसरा स्लाइड में दिया हुआ है, बहुत सारा इनकारनेशन है।
गोविंद, बामन, नरसिंह, देन अच्युत, त्रिविक्रम, विष्णु, ऐसे बहुत सारा इनकारनेशन है जो आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक में रहते हैं। तो सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन, उसके नीचे है मथुरा, उसके नीचे है द्वारका, उसके नीचे है अयोध्या, उसके नीचे है वैकुंठ, और उसके नीचे है भौतिक जगत। और भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक नदी है, उसका नाम है बिरजा, जो भौतिक जगत के गुण के परे है। तो उस उधर कैलाश बोल के एक स्थान है, बिरजा के बाद एक कैलाश बोल के एक स्थान है जिधर भगवान शिव जी रहते हैं, दोनों जगत के बीच में। तो अभी जब इस पृथ्वी लोक में जब अलग अलग प्रकार की समस्या होता है तो देवता लोग वो क्षीरोदक्षय विष्णु के पास जाते हैं, ब्रह्मा के साथ क्षीरोदक्षय विष्णु के पास जाते हैं और उधर जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मदद करिए। तो तब क्या होता है, क्षीरोदक्षय विष्णु आकाशवाणी करते हैं, ठीक है, मैं इस अवतार के रूप में इस स्थान पे, इस नाम पे, इस माता पिता के घर में मैं प्रकट होने वाला हूँ। तो क्षीरोदक्षय विष्णु, थोड़ा दूसरा स्लाइड में चले जाइए। तो क्षीरोदक्षय विष्णु ब्रह्मा को और फिर देवता को वचन देते हैं और फिर उस स्थान पे ये जितने भी ऊपर में इनकारनेशन देखिए, थोड़ा ऊपर जाइए, ऊपर, हाँ। तो इधर से देखिए, ये जो व्हाइट कलर के ऊपर में जो येलो कलर है, थोड़ा ऊपर जाइए, हाँ, येलो कलर, जितने भी इनकारनेशन है ऊपर से लेके एकदम कृष्ण से लेके इधर आपके जो चतुर्भुज, दूसरा चतुर्भुज तक, हाँ, नीचे जाइए, हाँ, इधर देखिए एक साथ बहुत सारा है, केशव, नारायण, हाँ, माधव, हाँ, ये भगवान विष्णु के, कृष्ण के अलग अलग नाम है। वो भगवान विष्णु और कृष्ण में फर्क नहीं है, आपको पता है, कृष्णा इज इन द होम, कृष्ण इज द ओरिजिन, विष्णु उनके इनकारनेशन है। तो तत्व तो उसमें पोजीशन में कोई फर्क नहीं है, तो लीला भेद में फर्क है। ये सारे अवतार तब वो जरूरत के अनुसार जब ब्रह्मा प्रार्थना करते क्षीरोदक्षय विष्णु के पास क्षीर समुद्र के तट पे, तब क्या होता है, फिर एक फोटो निकालिए, देखिए क्षीरोदक्षय विष्णु बैठे हुए हैं और ब्रह्म देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक फोटो देखिए, टाइप करके अगर आता है तो तब क्या होता है, भगवान उनको वचन देते हैं और फिर उस स्थान के समस्या को पूरी करने के लिए भगवान आध्यात्मिक जगत में प्रकट होते हैं। तो जितने भी इनकारनेशन है क्षीरोदक्षय विष्णु के थ्रू आते हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु के पास जाएंगे तब भगवान देवता लोग जाएंगे तब प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार भगवान और भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार के बारे में हमने चर्चा किया है। अगले वीक में हम लोग चर्चा करेंगे भगवान के शक्ति, भगवान की जो शक्ति, अभी भगवान के अवतार के बारे में चर्चा किया है। अभी भगवान जिधर जिधर प्रकट होते हैं उनके साथ साथ उनके शक्ति भी प्रकट होती है। भगवान अयोध्या में राम के रूप में प्रकट होते हैं और कृष्ण राम के रूप में प्रकट होते हैं, और उसी प्रकार राधा रानी सीता के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान वैकुंठ में नारायण के रूप में रहते हैं और उसी प्रकार भगवान के आदि शक्ति राधा रानी वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में रहती है। तो इस प्रकार भगवान की शक्ति, भगवान जिधर जिधर प्रकट होते हैं भगवान के मूल शक्ति या आह्लादिनी शक्ति जो भगवान को आनंद प्रदान करती हैं, भगवान के साथ साथ प्रकट होती है। जैसे किसी मूवी होता है, हीरो है लेकिन कोई हीरोइन नहीं है, कैसा लगेगा? और मेन मूवी तो हीरो और हीरोइन का ही होता है कि नहीं? मेन पार्ट ऑफ द मूवी। और ये सब कुछ है जो है ना, रामायण महाभारत की कॉपी है। रामायण महाभारत से कॉपी करके वो रामचंद्र की नकली हीरो बनाया गया है। और लोग अभी रामायण महाभारत नहीं देखते हैं तो लोग क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, अलग अलग प्रकार की मूवी है। और असल में उस हीरो का कोई ताकत नहीं है, हीरो शायद सुसाइड करके मर रहा है,
हीरो एक्चुअल मूवी के जो हीरो है वो तो सुसाइड करके मर जाता है, नहीं तो उसके लाइफ में डिवोर्स हो जाता है। हाँ, और उसको हम लोग हीरो मान के हम लोग हम सपना देखते हैं, ओ हम भी जैसे ये ऐसे हीरो बन जाएंगे, हमें भी ऐसा हीरोइन मिल जाएगी, हम भी कॉलेज लाइफ में ऐसे लड़की के साथ लव अफेयर करेंगे और वो भी हमको उतना ही प्यार करेगी जैसे मेरे लिए जान दे देगी, मेरे से उस बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देगी। और लड़की भी सोचती है यार मेरे हीरो भी ऐसा ही छलांग लगा देगा और उसका हड्डी टूट जाएगा, उसको पता नहीं। हाँ, तो असली हीरो जो है ना वो कृष्ण है और कृष्ण की शक्ति है, हीरोइन। हाँ, असली जो सबसे सौंदर्य है, सबसे ज्ञानवान है, सबसे शक्तिमान है, सबसे वैरागी भी है, सबसे रिनाउंसिएशन भी है। आजकल के जमाने के हीरो में क्या रिनाउंसिएशन है? सब सेंस ग्रेटिफिकेशन और क्या है, इलिसिट सेक्स लाइफ में फंसे रहते हैं। एक लड़का बहुत सारे लड़कियों के साथ संबंध रखते हैं और फिर उसको जेल जाना पड़ता है। हाँ, या लड़की लोग सुसाइड कर लेती है। तो ये आज के दुनिया के मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन है। So real civilization is when you are getting attracted to the real hero and real heroine, real master and his energy, real energetic and the energy, that is Krishna and his incarnation, different incarnation, Rama, Varaha, Narasimha, and Krishna's unlimited incarnations. They are performing wonderful pastime in different planets. They have their own abode and they appear in this world. They appear in this world to deliver all the fallen soul, to annihilate the miscreant. जितने भी असुर लोगों को annihilate करने के लिए आते हैं, and they establish religion. So this is the supreme hero and he appear with his for his devotees. He appear with his devotees and he appear with his associates. अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं और अपने शक्ति के साथ प्रकट होते हैं, अपने शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। तो शक्ति और शक्तिमान, तो अगले वीक में हम लोग शक्ति के बारे में श्रवण करेंगे और भगवान के बहुत सारे दिव्य लीला, स्वीट पास टाइम, कृष्ण की अलग अलग इनकारनेशन और कृष्ण के शक्ति के साथ जो बहुत सारे दिव्य लीला हुआ है उसके बारे में हम लोग अगले वीक में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।